Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be doing chapter number 5 from the supplementary reader book class 10 CBSE, and the name of the chapter is Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. So my dear children, before we discuss this chapter in detail, let's discuss about the writer. So H.G. Wells was a British writer and he was born on 21 September 1866. H.G. Wells wrote many novels as well as short stories, and this story, Footprints Without Feet, is one of his famous writings. At last, on 13 August 1946, he took his last breath. So that was a short introduction or short description about the writer. Now we'll discuss this chapter in detail. Can a man become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? So the very first question in this chapter says that, can a man become invisible? Is it possible for a man to become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. So in this chapter, we are going to discuss about a scientist, we are going to read about a scientist who discovered how to make himself invisible. Invisible means अपने आप को गायब कर देना, अदृश्य हो जाना, लोगों के सामने नहीं दिखना. In a way, it is not possible for a man to become invisible. But this scientist, he anyhow made himself invisible. Does he use or misuse his discovery? Now, my dear children, we all know if a man gets invisible, अगर एक व्यक्ति अदृश्य हो जाता है, अगर एक व्यक्ति अपने आप को गायब कर सकता है, तो बहुत से गलत काम भी कर सकता है, and at the same time he can do many good things also. But now in this story we will find out whether this scientist has misused his discovery or whether this scientist has used his discovery in a right and good way. How did the invisible man first become visible? Why was he wandering the streets? Now these two questions, the answers are in the chapter. How did the invisible man first become visible? और ये जो व्यक्ति जो अदृश्य हो गया था, ये पहली बार कब दिखा? Why was he wandering the streets? और वो क्यों सड़कों पर यूं ही घूम रहा था? Okay, now we'll discuss this chapter in detail. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? So as this chapter starts, we can see there are two boys and they are fully surprised. दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे पूरी तरीके से चकित हो गए हैं. क्यों चकित हो गए हैं? Because they have seen the fresh muddy imprints of a pair of bare feet were on the steps of a house in the middle of London. लंदन शहर के बीचों बीच में एक घर के सीढ़ियों पर दोनों बच्चों ने मट्टी से सने हुए पैरों के निशान देखे. बट द क्वेश्चन वॉज, मट्टी से सने हुए पैरों के निशान तो थे, लेकिन पैर नहीं दिख रहे थे, ना ही इंसान दिख रहा था. एंड दिस वॉज समथिंग अमेजिंग फॉर दीज टू चिल्ड्रन. एंड वेयर वॉज द मैन? एज दे गेज्ड, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. A fresh footmark appeared from nowhere. As they gazed, gazed means to look with full concentration, पूरा ध्यान लगाकर देखना.
दोनों बच्चे बड़े ध्यान से उन पैरों के निशानों को देख ही रहे थे, इतने में ही उनकी आंखों के सामने दो और पैरों के निशान बन गए. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. देर आर द इम्प्रिंट्स. इम्प्रिंट्स का मतलब होता है निशान. देर आर द इम्प्रिंट्स ऑफ द बेयर फीट, बट द मैन इज इनविजिबल. इंसान नहीं दिख रहा, लेकिन पैरों के निशान पड़ रहे हैं. ओके, दैट इज वाई दिस टू बॉयज वर अमेज्ड. Further, footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. Then what happened? Literally, these footprints, they started following one after another. ठीक है, अब एक पैर के बाद दूसरा पैर इस तरीके से जो है पैरों के निशान ज़मीन पर पड़ते चले गए और स्ट्रीट उस सड़क की ओर बढ़ती चले जा रहे थे. और दोनों बच्चे जो हैं आश्चर्यचकित होकर, दे वर अमेज्ड एंड दे वर फॉलोइंग दोज फुटप्रिंट्स, और वो उन पैरों के निशानों के पीछे पीछे चल रहे थे. इंसान तो दिख नहीं रहा था, लेकिन उस मट्टी से सने हुए पैरों के निशान बस ज़मीन पर पड़ते हुए चले जा रहे थे और वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे. और कब तक उसका पीछा किया? Until the muddy impressions became fainter and fainter. Muddy impressions means वो मिट्टी के जो निशान थे पैरों के, वो जब हल्के होने लग गए. Fainter means what? To become, light. हल्का होने लगा. और धीरे हल्का होते होते what happened? Finally it disappeared. अब पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे. The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब इस पूरी जो रहस्य है, इसका बड़ा ही सिंपल सा एक आंसर है. आंसर ये है, the bewildered boys. Bewildered means confused boys. ये दोनों बच्चे confused थे कि भैया ये पैरों के निशान पड़ कैसे रहे. But actually these two bewildered boys, वो किसको फॉलो कर रहे थे? दे वर फॉलोइंग ए साइंटिस्ट. वो एक वैज्ञानिक को फॉलो कर रहे थे. एंड दिस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट. और ये कोई ऐसा वैसा साइंटिस्ट नहीं था. ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एक खोज की थी कि कैसे इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट कर दें, आर पार दिखने लगे. ओके, Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Now the name of the scientist is Griffin. Griffin ने एक के बाद एक कई experiments किए और finally what happened? उन्होंने एक दवाई खाई. Okay, rare drugs. Drugs here means some medicines. Swallowed means निगलना. So उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली and after taking those medicines he became transparent. He became invisible. और वो एकदम transparent हो गए, आर पार दिखने लग गए. कैसे? As a sheet of glass. जैसे एक कांच होता है, कांच के आर पार हम देख सकते हैं. In that same way, after swallowing that rare drugs, the scientist, Griffin, he became invisible. He became transparent. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. Well, Griffin was a brilliant scientist, but at the same time he was a lawless person. Griffin बहुत ही brilliant, कमाल के वैज्ञानिक थे, but साथ ही साथ he was a lawless person. Lawless means a person who does not follow the rules and regulations, who does not follow the law. ठीक है, जो कानून का पालन ना करे उसको हम कहते हैं lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. And every time Griffin had a contention with his landlord. Landlord means what? मकान मालिक. And that was the reason that his landlord always disliked him. और इसीलिए landlord पसंद नहीं करते थे ग्रिफिन को. एंड ऑलवेज लैंडलॉर्ड ट्राई टू इजेक्ट हिम. इजेक्ट मीन्स व्हाट? अपने घर से निकालना. हमेशा लैंडलॉर्ड की कोशिश रहती थी कि ग्रिफिन को अपने घर से निकाल दे. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. सो
In revenge, what happened? बदला लेने के लिए ग्रिफिन, he set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Now, what is happening? If really Griffin wants to be invisible for others, then he has to remove his clothes. अगर ग्रिफिन को अपने आप को अदृश्य करना है, अपने आप को गायब करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? He has to remove his clothes. उसे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब फाइनली व्हाट हैपेंड, अपने आप को लोगों से छुपाने के लिए, अपने आप को अदृश्य बनाने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? अपने सारे कपड़े उतार दिए. अब उसके पास ना ही पैसा है, ना ही कपड़े हैं, अदृश्य हो गया है. एंड ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर. होमलेस वॉन्डरर मीन्स अ मैन विदाउट ए होम. वॉन्डरर मीन्स रोमिंग हेयर एंड देयर. एक व्यक्ति जो बिना घर का, जो इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है. ओके. एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, समवेयर ही स्टेप्ड इन सम मड. और कहीं ना कहीं मट्टी थी, कीचड़ था, और कीचड़ में उसके पैर पड़ गए, और उसकी वजह से क्या होने लगा? व्हाट हैपेंड, वो जहां जहां चल रहा था पैरों के निशान जो है पड़ रहे थे. बट ही वॉज इनविजिबल. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. Finally, what happened? Anyhow, he succeeded in escaping from the boys who were following his footprints in London. और उन दो बच्चों से तो वो किसी तरह बच गए, जो दो बच्चे जो है ग्रिफिन के फुटप्रिंट्स, जो पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन ओवर. लेकिन उनके जो कारनामे हैं वो अभी कम नहीं हुए. ग्रिफिन के जो कारनामे हैं वो कम नहीं हुए. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. And literally, the time was midwinter. It was midwinter. और तब सर्दियों के समय था, बीच सर्दियों का समय था, और ऐसे समय पर बिना कपड़े के घूमना सड़कों पर, इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट. और एक गलत समय चुन लिया था ग्रिफिन ने, और ग्रिफिन को बहुत दिक्कत हो रही थी ऐसे ठंड में बिना कपड़े के घूमना. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. और हवा इतनी ठंड हवा में थी कि बिना कपड़े के उससे रहा नहीं जा रहा था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, he decided to slip into a big London store for warmth. तो then what happened literally, ग्रिफिन ने ये सोचा कि सड़कों पर टहलने से अच्छा है कि मैं किसी बड़े से मॉल में चला जाऊं. लंदन स्टोर, बिग लंदन स्टोर means somewhat like a mall, shopping mall, a mall where you can get, you'll have restaurants, you'll have shops, garment shops, you'll have other varieties of shops available there. That is what a mall is all about. तो उन्होंने सोचा कि मॉल में जाकर मैं अपने आप को थोड़ी देर रहूं ताकि मुझे कुछ क्या मिल सके, गर्मी मिल सके. ओके. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. So finally what happened, when he entered that mall, finally it was the time for closing that mall, closing that big store. और जब वो उस बिग स्टोर में पहुंचे तो क्या हो गया, वो बंद होने का समय था, और इसीलिए वो सबकी नज़रों से बचकर चुपके से अंदर पहुंच गए उस मॉल के अंदर. एंड देन nobody was there to see him because the mall was closed. Now the clothes, everything was Griffin's. So he started wearing all sort of clothes, and he started eating all sort of things that were available in that mall, in that restaurant, without paying for anything. ठीक है. अब उस मॉल के अंदर, चूंकि मॉल बंद हो चुका था, अब वो मॉल के अंदर बिना किसी को दिखे उन्होंने वो अंदर प्रवेश कर चुके थे, इसीलिए अंदर के जितने भी कपड़े थे उसको वो पहन रहे थे, जो मन कर रहा था वो खा रहे थे बिना पैसे दिए. एंड ही वाज लिटरली एंजॉयिंग. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. अब वो जो है अलग अलग जो कपड़ों के जो बॉक्सेस हैं उनको तोड़ दिया, और जो कपड़े जो पैक थे उनको खोल दिया, रैपर्स को खोल दिया, और अलग अलग नए नए जैकेट, स्वेटर्स, जो भी गर्म कपड़े थे वो सब पहन लिए. विद शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट. ओके, ही वाज वेयरिंग ओवरकोट, उन्होंने एक ओवरकोट भी पहन लिया, शूज पहन लिए, और वाइट ब्रिम्ड हैट. ब्रिम्ड मीन्स व्हाट? एज.
ठीक है ना, चौड़ी किनारों वाली हैट भी उन्होंने ले ली. ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, एंड द मोमेंट ही वोर दैट ड्रेस ही बिकेम विजिबल. और जैसे ही उन्होंने कपड़ा पहना वो दिखने लग गए. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he went in the kitchen of the restaurant, and there he found some cold meat and coffee. रेस्टोरेंट में गए और उसके बाद उन्हें वहाँ पे मीट मिला, कॉफ़ी मिला, फिर उन्हें स्वीट्स मिले, वाइन मिला, वो सारी चीज़ें जो कुछ वहाँ पर था उन्होंने उसको खाया. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. और फाइनली व्हाट हैपेंड, इतना खा लिए कि उन्हें भारी नींद आ रही थी. सो ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स. क्विल्ट्स मीन्स व्हाट, मल्टी लेयर्ड टेक्सटाइल. जो कपड़ों की ढेर पड़े हुए थे, उन्हीं कपड़ों की ढेर पर उन्होंने सोने का निर्णय किया. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. अब अगर ग्रिफिन समय से सुबह उठ गए होते तो शायद सब कुछ ठीक रहता. As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. But as he was very tired and he slept for a longer period, and finally what happened, जब सुबह मॉल खुलने का समय हुआ और जब वहाँ के assistants, the employees of that mall, जब वो आए उस लंदन स्टोर को खोलने के लिए, तब तक ग्रिफिन आराम से सो रहे थे, उनको होश नहीं था. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो वहाँ से उन्होंने भागना फायदेमंद समझा. They naturally gave chase. Chase means पीछा करना. So the other people, they started chasing him. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. और फिर से जब देखा ग्रिफिन ने कि सब लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके अपने कपड़े उतारते चले गए. और जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतार रहे थे, वैसे वैसे ही वॉज बिकमिंग इनविजिबल, वैसे वैसे वो अदृश्य हो रहे थे. और करते करते वो पूरी तरीके से नेकेड हो गए, निवस्त्र हो गए. और वो जनवरी का समय था, और एक बार फिर से व्हाट हैपेंड, ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल. चिल जनवरी मीन्स बहुत ही ठंड भरी जनवरी. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. So finally this time he decided to try the stock of a theatrical company. Theatrical company means what? Natak ki company. Okay, so Natak ki company means a shop, that is where you can get garments or एक्सेसरीज रिलेटेड टू थिएटर. नाटक के जो सामग्रियां होते हैं, जहाँ पे नकली दाढ़ी, नकली मूछ, कपड़े अलग अलग तरीके के जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जाने की सोची. बिकॉज अपार्ट ऑफ क्लोथ्स ही रियली वांटेड टू हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स. तो कपड़े तो ठीक है, लेकिन जो चेहरा है अपना, कंधे से ऊपर वाला भाग, उसको बेसिकली वो छुपाना चाहते थे. तो उसको कैसे छुपाएं, क्योंकि कपड़ा जब वो पहन लेते थे तो पूरा कपड़ा, पूरा शरीर कपड़े से ढक जाता था, लेकिन चेहरा जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखता था, वो ठीक है ना, आर पार दिखता था. तो चाहते थे कि मैं अपने चेहरे को भी इस तरीके से बना दूं कि पूरा इंसान की तरह दिखूं. शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप. सो ही वॉज लिटरली शिवरिंग, काँप रहे थे. ग्रिफिन ठंड से बहुत ज़्यादा काँप रहा था. और फाइनली ही हरीड टू ड्रूरी लेन. ड्रूरी लेन इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है. वहाँ पर बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. वहाँ पे थिएटर से रिलेटेड बहुत से शॉप्स हैं. वहाँ पर वो पहुँचे, एंड फाइनली ही फाउंड अ सूटेबल शॉप. और उनको एक जो है अच्छी सी दुकान भी दिख गई. He made his way invisible upstairs and came out a little later, wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. और फाइनली उन्होंने चुपके से सबकी नज़रों को बचाते हुए सीढ़ियों से ऊपर चले गए. और ऊपर जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर क्या ले लिया, बैंडेज ले लिया, ठीक है, पट्टियाँ, अपने माथे पर पट्टी बांध ली उन्होंने, काला चश्मा ले लिया, ठीक है, एक नकली नाक ले ली लगाने के लिए. बिग बुशी साइड विस्कर्स. साइड विस्कर्स मीन्स दिस साइड लॉक, बगल के जो बाल होते हैं.
कान के पास के जो बाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड साइड विस्कर्स, वो नकली, वो उन्होंने ले लिया, एंड ए लार्ज हैट, एक बड़ा सा हैट ले लिया. यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ही carelessly attacked the shopkeeper from behind. Carelessly means without any mercy or insensitive and cruel. ठीक है. So बचने के लिए उन्होंने क्या किया? He attacked the shopkeeper from the behind in a very insensitive and cruel way. And finally what happened? He robbed him of all the money he could find. और जितने भी पैसे वहाँ पर थे, वो सारे पैसों को लेकर वो जो है वहाँ से फरार हो गए. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. So finally what happened? Now he wanted to get away from this crowded London. इस लंदन जैसी भीड़ भाड़ वाली शहर से वो हटना चाहते थे, इसीलिए वो सोचे कि लंदन से मैं निकल कर कहीं बाहर चला जाऊं. ऐसे में उन्होंने कहाँ जाना पसंद किया? विलेज ऑफ आइपिंग. ठीक है. There he went and he booked 2 rooms at the local inn. Local inn means what? Local hotel, आप कह सकते हैं सराय. In Hindi we call it sarai. Okay, so he went there and he booked 2 rooms. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. So normally what happens, you know, in these hotels, normally during winter seasons, people don't come. Okay. Because that is the time when people prefer staying indoors. और विंटर के समय पर अमूमन होटल्स बहुत जो है खाली जाते हैं. लोग जल्दी विंटर्स के समय जो है होटल्स में रुकना पसंद नहीं करते, और ऐसे समय पर एक अजनबी आके रुक रहा है. सो इट वॉज क्वाइट एन अनयूजुअल इवेंट. एक ऐसी घटना थी जो थोड़ी सी जो है अलग लग रही थी. ओके. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work." So what happened? So a stranger with quite an uncommon appearance, एक अजनबी जो दिखने में बड़ा हटकर लग रहा है, सर पर हैट है, काला चश्मा है, माथे पर बैंडेज लगाया हुआ है, और नकली जो है साइड बुशी विस्कर्स हैं उसके, और दिखने में बड़ा अजीब सा है. उसको देखकर व्हाट हैपेंड? ऑल टंग्स वेगिंग. टंग्स वेगिंग मतलब तरह तरह की बातें लोग करना शुरू कर दे. वेगिंग मीन्स टू टॉक. ओके. सो तरह तरह की लोग बातें करना शुरू कर दी. हु इज़ दिस स्ट्रेंजर? कौन है? कहाँ से आया? सो मिसेज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, made every effort, you know, to be friendly. So Mrs. Hall, जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, जो उस इन, जो सराय मालिक की पत्नी थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ग्रिफिन से क्या कर लें? फ्रेंडशिप करें, बात करें, जाने की who is he actually. But Griffin had no desire to talk. But Griffin was not at all interested, you know, in talking to Mrs. Hall. And he very clearly told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude." Okay. And Griffin told Mrs. Hall very clearly that the reason for coming here is, you know, I want solitude. Solitude means what? एकांत. Okay? मुझे एकांत चाहिए, सुकून चाहिए, और यही वजह है कि मैं इतने क्राउडेड जगह से यहाँ पर आया हूँ, इस विलेज, आइपिंग विलेज में आया हूँ, ताकि यहाँ पे मुझे सुकून मिले, शांति मिले. Solitude means what? Alone, you know, where you can get peace, you know. I do not wish to be disturbed in my work. And Griffin said that I really don't want to be disturbed in my work. मेरे काम में मुझे किसी भी तरीके से जो है disturbance पसंद नहीं है. Besides, an accident has affected my face. And he just, you know, told them that an accident has affected his face. He told them a lie. उसने झूठ बोला उन सब से कि एक एक्सीडेंट में जो है मेरा चेहरा बुरी तरीके से मेरे चेहरे पर चोट लग गया है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. So finally what happened? By, you know, coming across all these you know, stories of Griffin, finally the landlord and, you know,
his wife, they were pretty satisfied and they believed this fact that yes, he was an eccentric scientist. Okay, so here literally what happened कि अब सब लोगों ने ये मान लिया कि भाई हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप जो हो, जो कुछ बोल रहे हो वो बिल्कुल सच है। इसेंट्रिक साइंटिस्ट का मतलब होता है स्ट्रेंज साइंटिस्ट, एक ऐसा साइंटिस्ट जो बहुत ही अलग सा और थोड़ा सा अजीब सा हटकर हो बाकी सबसे। और उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो भी कह रहे हो, हम तुम्हारी बात को मान लिए। एंड अनदर बेस्ट पार्ट वाज व्हाट, ही पेड हर इन एडवांस, और उसने पहले ही एडवांस में पैसे भी पेमेंट कर दिए थे उस लैंडलॉर्ड को, तो और भी कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। चूँकि उसने पहले ही पैसे भी दे चुके थे, तो मिसेस हॉल भी तैयार थी कि कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो जैसी भी उसकी आदत हो, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो नाराज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे तो हमें मिल चुके हैं। But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Now what happened, जो दूसरे जगहों से पैसे चोरी किए थे वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाए। जितने दिन थे उतने दिन ग्रिफिन आराम से रह लिया उस होटल में, उस इन में, लेकिन जब पैसे ख़त्म हो गए, सो फाइनली ही एडमिटेड दिस फैक्ट टू एवरीबडी दैट आई हैड नो मोर मनी। उसके बाद उसने सबके सामने अपनी बात मान ली कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। बट ही प्रिटेंडेड मीन्स वॉट, टू शो ऑफ, दिखावा करना। क्या दिखावा किया, दैट ही इज़ एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि मेरा कुछ पैसे आने वाले, एक चेक आने वाला है मेरे पास, अच्छी खासी रकम का चेक आने वाला है कभी भी, और मैं जो हूँ आपको बाकी पैसे चुका दूंगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. So what happened, after this, a very strange incident happened. Shortly afterwards, a curious episode. Episode means incident. Curious means very interesting. एक बहुत ही जो दिलचस्प घटना घटी। क्या घटी? Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Clergyman means a man who works in the church. You can call him a priest also. ठीक है, पुजारी जिसे हम कहते हैं। तो एक सुबह की बात थी कि पुजारी और उनकी पत्नी जो है, उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी और वो हड़बड़ा के उठ गए। ओके, क्रीपिंग डाउन स्टोर्स, अब धीमी धीमी आवाज़ में वो जब नीचे सीढ़ी से उतर के गए नीचे वाले कमरे में देखने के लिए कि क्या हो रहा है, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। और चिंक ऑफ मनी मीन्स मेटेलिक साउंड। कभी आपने देखा होगा सिक्कों की जो आवाज़ होती है ना, सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये की जो सिक्कों की जो आवाज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड चिंक ऑफ मनी। तो उनको पैसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कि कोई पैसे निकाल रहा है। कहाँ से? क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो दराज था, उस दराज में से कोई पैसे निकाल रहा है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. अब बिना आवाज़ किए what happened? The clergyman with a poker मतलब क्या होता है? A metal stick. Okay? A metal stick. एक मजबूत जो है मेटल का स्टिक उन्होंने अपने हाथ में लिया और बड़ी तेजी के साथ उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा सरेंडर। ओके, कौन है? अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ओके, then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. But he was amazed, he was astonished, and he found that the room was empty. लेकिन उसने देखा कमरे में तो कोई नहीं है, रूम पूरी तरीके से खाली है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. Then they started investigating the whole room. They started looking for, the possible thief behind the curtain or under the desk, even up in the chimney. अब वो टेबल के नीचे, पर्दों के पीछे, हर जगह, उन जहाँ चिमनी में भी वो झांक के देख ली, शायद यहाँ कोई छुपा हो। सो एवरीवेयर उन्होंने देखा कि शायद कोई चोर छुपा हो। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनी बडी, बट देयर वॉज नो साइन, कोई भी जो है निशान नहीं थे कि किसी इंसान के। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। लेकिन दराज खुला हुआ था
और जो पैसे थे हाउसकीपिंग के, ठीक है, वो वहाँ से क्या थे, गायब थे, वहाँ पर मौजूद नहीं थे। हाउसकीपिंग मनी मतलब क्या होता है? हाउसकीपिंग मनी मीन्स मनी नीडेड इन मैनेजिंग ए हाउस। हाउसकीपिंग मीन्स ऐसा पैसा जिससे घर चलाने के लिए जो रखा जाए, ठीक है, घर चलाने के लिए जो पैसे रखे जाते हैं, दैट मनी इज कॉल्ड हाउसकीपिंग मनी। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. Extraordinary affair here means a strange incident, something that is unacceptable, something that is unbelievable. The clergyman kept saying for the rest of the day. अब clergyman जो है वो दिन भर बस यही कह रहे थे, बड़ा ही अजीबो गरीब घटना घटी है, मैं भरोसा नहीं कर सकता, विश्वास नहीं हो रहा मुझे, मेरी आंखों पर ऐसा हुआ है आज मेरे साथ। बट ये तो कुछ भी नहीं है, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। और उसी में कुछ घंटे बाद मिसेज हॉल्स के घर के जो फर्नीचर्स के साथ जो कुछ हुआ वो तो एकदम ही अलग घटना थी, वो एकदम ही जो है डिफरेंट था। क्या हुआ? लेट्स फाइंड आउट। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। एक दिन सुबह क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? लैंडलॉर्ड और उनकी जो पत्नी है वो जल्दी सुबह उठ गए और उन्होंने देखा है कि साइंटिस्ट का जो रूम का डोर है, जो दरवाज़ा है, वो खुला हुआ है। अमूमन उसका दरवाज़ा हमेशा, ग्रिफिन का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था और कोई भी अगर उसके घर के कमरे के अंदर प्रवेश करे तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता था ग्रिफिन को। लेकिन आज ग्रिफिन के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ को लगा कि इससे अच्छा और मौका हो नहीं सकता, कमरे के अंदर झांक कर देखें कि है क्या सही मायने में। They peeped round the door. Peeped मतलब what? झांकना अंदर। Saw nobody and decided to investigate. और जब उन्होंने झांक कर देखा तो उन्हें अंदर कोई नहीं दिखा, तो उन्होंने सोचा चलो अंदर जाके जांच पड़ताल करते हैं ग्रिफिन के इस कमरे की। ग्रिफिन है कौन? क्या है ग्रिफिन? The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. अब उन्होंने देखा कि जब कमरे के अंदर गए, बिस्तर पर हाथ रखा तो बिस्तर एकदम ठंडा था। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट बिस्तर पर से उठे हुए काफ़ी देर हो चुका है और साइंटिस्ट के जो बैंडेजेस हैं और भी जो भी बाकी कपड़े वो चेहरे पर लगाता था वो सब वहाँ पर रखे हुए थे। ओके। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. थोड़ी देर में क्या हुआ? मिसेस हॉल को ऐसा लगा उनके कान के पास कोई सांस ले रहा है। सांस, ओके। स्निफ मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्निफ? सांस लेना, ओके। कान के पास कोई सांस ले रहा है, बट आदमी तो नहीं दिख रहा। अ मोमेंट लेटर, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ? द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और थोड़ी देर बाद जो वहाँ पर हैट टंगा हुआ था बेड पोस्ट पर, वो अपने आप अपनी जगह से उठा और उड़ते हुए आकर जो है मिसेस ग्रिफिन के चेहरे पर जोर से लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और थोड़ी देर बाद उस बेडरूम के अंदर जो चेयर था, उस चेयर में भी अपने आप जान आ गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। और अगले ही पल अपने आप वो चेयर हवा में उठा और बड़ी तेजी के साथ सीधा आकर जो मिसेस हॉल है उनके पैरों से जाके लड़ गया। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और अगले ही पल उस कुर्सी ने दोनों लोगों को जोर से धकेल कर कमरे से बाहर कर दिया। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड? तेजी से कमरा बंद हुआ और कमरा लॉक हो गया। ओके। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। अब मिसेस हॉल was literally she was in a state of extreme fear. Hysterics का मतलब होता है extreme fear, हद से ज़्यादा भयभीत हो जाना,
घबरा जाना, डर जाना, ऐसी स्थिति हो गई थी किसकी, मिसेस हॉल की, जिसकी वजह से वो लगभग सीढ़ियों से गिर जाने वाली थी. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. And somewhere Mrs. Hall was convinced, और वो इस बात को मानने लगी कि हमारे कमरे में क्या है, कोई बुरी आत्माओं का जो है यहाँ पर बसेरा है, और ये बुरी आत्माएं यहाँ पर किसकी वजह से आई हैं, ये स्ट्रेंजर की वजह से आई हैं, इस व्यक्ति की वजह से ही आई हैं, और इस व्यक्ति की वजह से ही ये सब उल्टी सीधी चीज़ें कमरे में हो रही हैं. My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. And Mrs. Hall, she was literally crying. वो रो रही थी और कह रही थी कि इसी कुर्सी पर मेरी माँ बैठा करती थी और आज ये कुर्सी जो है मुझ पर मारने के लिए फेंकी गई. Okay, and she was literally very sad about that. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, and the neighbors, they were literally thinking that all these things happened because of some witchcraft. Witchcraft means what? जादू टोना. So जो पड़ोसी थे उनका ये मानना था कि किसी प्रकार का ये जादू टोना किया गया है और तभी ये सारी चीजें हो रही हैं. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जब ये पता चला कि क्लर्जीमैन के घर में डकैती हुई है, पैसे चोरी हुए हैं, पूरा शक जो है किस पर जाने लग गया, ग्रिफिन के ऊपर. ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है इसके ऊपर शक जाने लग गया. सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. और शक तो और ज्यादा गहरा तब हो गया जब ग्रिफिन ने, वो जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है, कहां से पता नहीं कुछ पैसे लाकर सामने रख दिए, जबकि थोड़ी ही समय पहले उसने बोला था कि मेरे पैसे सारे खत्म हो चुके हैं. The village constable was secretly sent for. Now finally what happened? It was informed to the police, and the village constable, he came. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chairs upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. Now what happened? Mrs. Hall कहाँ गई? वो साइंटिस्ट के पास गई और साइंटिस्ट से बोली, और साइंटिस्ट कहाँ से निकला था बाहर? He appeared from his empty bedroom. वो बेडरूम जो कि बंद पड़ा था, जिसमें कोई नहीं था, उस बेडरूम से वो बाहर निकला. तो मिसेस हॉल ने पूछा, सबसे पहले तो ये बताओ तुम मेरे कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे, और ये बताओ खाली रूम के अंदर, खाली रूम से तुम निकले कैसे बाहर? अभी तक तो रूम में कोई नहीं था, तुम कहाँ से आ गए? और ये कमरा तो बंद था, और उस बंद कमरे में तुम प्रवेश कैसे किए, तुम एंटर कैसे किए? ओके. The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. Quick-tempered मतलब बहुत जल्दी गुस्सा जाना. तो साइंटिस्ट को बहुत जल्दी गुस्सा आ गया. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. साइंटिस्ट ने कहा तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं. I will show you. अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूं. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. And it took him only a minute to do this. और अगले ही पल उसने अपने तुरंत चेहरे के बैंडेजेस हटा दिए और साइड विस्कर्स हटा दिए, चश्मा हटा दिया, जो नकली नाक थी वो हटा दिया, और अगले पल में वो क्या बनने लग गया? Invisible. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. और अगले ही पल उनके सामने बिना सर का एक व्यक्ति खड़ा था. हेडलेस मैन, वाई? बिकॉज कोट पहना हुआ है, वो नीचे पैंट पहना हुआ है, तो नीचे तो सब कुछ दिख रहा है उसका, सिर्फ क्या नहीं दिख रहा? चेहरा नहीं दिख रहा. Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. Now the constable, his name was Mr. Jaffers, and he came there and he was very surprised to see a man without a head. बिना सर के व्यक्ति को देखकर वो चकित हो गए. वो एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने आए थे जिसका सर ही नहीं था. बट जैफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जैफर्स एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए
तो उस जिम्मेदारी को पूरी करता था. इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हिज हेड. और अगर मजिस्ट्रेट का आदेश आया कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो उस व्यक्ति को वो गिरफ्तार करके ही रहते थे, चाहे बिना सर के चाहे सर के हो, किसी भी तरीके से गिरफ्तार उसे कर ही लेते थे. There followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Now finally what happened, this policeman, he tried to get hold of this man, of this scientist. अब उन्होंने साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की और ये साइंटिस्ट एक एक करके अपने कपड़े उतारते जा रहा है और वैसे वैसे अदृश्य होते भी जा रहा है. Finally a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और आखिरी में जब ग्रिफिन ने अपने शर्ट भी उतार दिए, वो पूरी तरीके से अदृश्य हो गया और कांस्टेबल जो है समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको पकड़ूं, कहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. अब जब बाकी लोग उस पुलिसमैन की मदद करने के लिए आगे आए तो उन्हें समझ में नहीं आया. ब्लोज मतलब घूंसे, मुक्के, कहीं से मुक्के पड़ रहे थे उनके चेहरे पर इधर उधर से. अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुक्के आ कहाँ से रहे हैं जो बार बार उनको लग रहे हैं. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और आखिरी में what happened, जेफर्स को इतना जोरदार मुक्का मारा गया कि वो बेहोश हो गए और ज़मीन पर गिर गए. There were nervous, excited cries of hold him. और लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पकड़ो पकड़ो. कहाँ पकड़े? दिखे तब तो पकड़े. The man who is invisible, how is it possible to hold a person who is invisible? But this was easier said than done. लेकिन ये बोलना आसान था पकड़ो, लेकिन सही मायने में पकड़ना बहुत कठिन था. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री. अब वो अपने आप को आज़ाद कर चुका था. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पर ग्रिफिन है कि अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाएं. सो माय डियर चिल्ड्रन, दिस वॉज अ वंडरफुल स्टोरी about Griffin, a scientist who discovered, how to make a man invisible, and he swallowed some rare drugs and became invisible. But unfortunately, he used his discovery in a wrong way. Rather, I would say he misused his discovery. He would have gone for a good thing also, but rather he used his discovery for robbing people, for stealing things, for beating others, and for getting involved in lawless activities. So that was all from this chapter. I hope you all have understood this chapter. Still, if you have any confusion, you can ask me in the comment section and I'll be responding to your questions. So that was all from this chapter. Thank you, children. Take care and God bless you.